Hello students. So far we have done those questions of limits in which by applying the limits we were getting determinant form or indeterminate form, and we learned how we can solve such type of questions, how we can find out limits in such type of questions. But in all those type of questions, the function was behaving in the same manner for all the values of the real numbers. But now today we will learn there are few just type of functions are also there which behaves in different manner at different points. Like this function is fx is equal to 2x plus 3 for all those values when x is less than equal to 0, and this function changes its behavior when x is greater than 0. When x is greater than 0, then function becomes 3 times of x plus 1. कैसे देखो, if this is the real number line, okay, this is minus infinity and this is plus infinity, then about 0, if you see here 0, then if x is less than 0, then here for all these values of x the function is 2x plus 3, even at this point also behaving in the same manner. But when it goes here on the right side, when x takes the values here, positive values, x is greater than 0, then the function changes its behavior. फिर function ये नहीं रहता, then function becomes 3 times of x plus 1. So it means this is a function which behaves, it changes its behavior at this particular point. So if we are to find out the limit in such type of questions, then we apply the method of left hand limit and right hand limit. We will find out left hand limit, we will find out right hand limit. If both left hand limit and right hand limits will be same, only then we say that limit exists in this case. Let us see in this question. This is the question number 23 of your exercise 13.1. Okay. So let us do it left hand limit. Left hand limit में सबसे पहले what to do, limit x tends to, we are to take the limit left of 0, because 0 is this point, this is a critical point about which the function is changing, and we have to check the limit at this point 0. Question में it is given, you have to check the limit at 0. तो 0 के लेफ्ट में जहां आपको लिमिट निकालनी है, you are to go little bit left of that. This minus superscript I have written 0 minus fx. What does it indicate? ये क्या indicate कर रहा है? ये it is indicating that we have to take the function which is little bit left of this 0. 0 के थोड़ा सा left में है. तो we will write it like this: limit h tends to 0. H is very small. It is approximately equal to 0, not exactly equal to 0. So h is tending to 0. And you are to take the function this fx. fx क्या है? 0 के left में. What is the function to the left of 0? This is twice of x की जगह हम क्या लिखेंगे? Because I told you now we will take 0 के left में लेना है. हमें ये वाला 0, ये हमारा x एक्चुअली. इसके लेफ्ट में जाना है आपको. लेफ्ट में कैसे जाएंगे? जब 0 में से you will subtract something. 0 में से थोड़ा सा subtract करेंगे तो हम लिखेंगे 0 minus h. हमने h subtract किया. h is this very small. Now you can see if I apply the limit, value of the limit upon 1 है, determinant form होगी, indeterminate तो ये होने से रही, तो upon 1 है तो you directly put the value of h. h is limit is 0. तो 0 minus 0 into 2 plus 3, this is 3. Okay. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आई है 3. Now come to right hand limit. Limit x tends to, अब इस 0 के राइट में जाना है, इस साइड में जाना है. पहले आप इस साइड गए थे तो माइनस किया था, जब आप इधर जाएंगे तो प्लस करेंगे. 0 प्लस आप ये लिखेंगे fx इक्वल टू 0 के राइट में फंक्शन क्या है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0. इसके बाद x नहीं लिखना है यहाँ, तो 0 के राइट में दिखाना है. नाउ h इज टेंडिंग टू 0. 0 के राइट में जो भी फंक्शन है वहां पर आप x का स्पेस छोड़ के बाकी एज इट इज लिखिए. x की जगह छोड़ दीजिए, बाकी एज इट इज लिखिए.
तो आप क्या लिखेंगे, x में क्या लिखेंगे, x इज लिटिल बिट राइट टू द जीरो, जीरो के थोड़ा सा राइट में है, तो जीरो के राइट में यानी 0 प्लस h, और h की लिमिट क्या है, इट इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो h की वैल्यू पुट किया, क्योंकि अपॉन में 1 है तो डिटरमिनेट फॉर्म है, आप h की लिमिट पुट कीजिए तो ये आया आपके पास 3 इंटू h की जगह 0 प्लस 1, दिस इज अगेन 3। तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है आपके पास। सो इन दिस केस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से लिमिट आपको क्या निकालनी थी, x इज टेंडिंग टू 0, fx क्या है, जो ये दोनों की वैल्यूज आई है लिमिट की 3, सो दिस इज योर आंसर। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू है 3। Now next question number 24 of exercise 13.1. In this question you are to find the limit when x is tending to 1. X is tending to 1 of fx. You are to find out, and this function is again of that type which behaves in different manner at this particular point 1. 1 is the critical point. 1 के left में ये function है x square minus 1. And when x is greater than 1 means right to the 1. This is minus x square minus 1. So now we are to find out the left hand limit and then right hand limit, and we are to check whether both the limits are same or not. Limit exists only when left hand limit is equal to right hand. So left hand limit पहले क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पर लिमिट निकालनी है 1, तो 1 के लेफ्ट में 1 माइनस, इसको ऐसे नहीं लिखना आपने इसको ऐसे लिखना है 1 माइनस लेफ्ट ऑफ 1, इट इज इंडिकेटिंग लेफ्ट ऑफ 1, fx is equal to left of 1 means this function, okay. So limit अब क्या लिखते हैं, आप x नहीं लिखना, आप लिखेंगे h is tending to 0, यानी कि 1 के लेफ्ट में जाने के लिए हम छोटा सा एक h लेंगे, वेरी वेरी स्मॉल h we will take, ठीक है। तो अब हम x की जगह छोड़ देंगे, बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज लिखना है, सिर्फ x की जगह छोड़िए और x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस h, क्योंकि x क्या बोला आपने 1 के लेफ्ट में यानी 1 माइनस h, 1 माइनस h। अब आप इसमें h की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब लिमिट आप h टेंडिंग टू 0 पुट कीजिए तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0, ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। नाउ कम टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू, अब आपको 1 के राइट में जाना है, पहले हम 1 के लेफ्ट में गए थे, अब यहाँ जाएंगे तो माइनस करके जाते हैं, यहाँ जाते हैं तो प्लस करके 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 के राइट में जाना है, तो फंक्शन क्या है, वहां पर x की जगह आप स्पेस छोड़ दीजिए -1, और वहां पर क्या लिखेंगे आप, जो आपने ये ब्रैकेट में 1 प्लस h, 1 प्लस h। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस h की लिमिट क्या है, दैट इज टेंडिंग टू 0, पुट इट हियर, नाउ इट इज -1 स्क्वायर -1, this is -1, that is -2. You can see both of these two limits are not same. So left hand limit is not equal to right hand limit. ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका जो लिमिट है 1 पर वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 1 के लेफ्ट में अलग है लिमिट और 1 के राइट में लिमिट अलग है। तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट तभी करती है जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है, ठीक है जी। And students, look here, this is the question. Evaluate limit x tends to 0. 0 पर इसको लिमिट को निकालना है इस फंक्शन की, और फंक्शन इज दिस इक्वल टू mod x upon x if x is not equal to 0. अगर x 0 के इक्वल नहीं है then it is defined in this manner, and if x is equal to 0 the answer is 0. तो अगर हम इसको नंबर लाइन पर दिखाएं, 0 is the critical point, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, 0 पर आंसर क्या है, 0 पर फंक्शन क्या है 0, 0 पर व्हाट इज द फंक्शन 0। इफ इट इज नॉट 0 यानी 0 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ भी हो सकता है, कहीं यहाँ भी हो सकता है, तो फंक्शन ये वाला लेना है mod x upon x, mod x upon x, okay। now you are to find out the limit when x is tending to 0। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x is tending to 0 माइनस 0 के लेफ्ट में माइनस fx is equal to लिमिट h tends to 0, ओके। अब क्योंकि ध्यान रखो इधर
जहां लिमिट आपको लेना है उसका लेफ्ट और इधर h इज टेंडिंग टू 0, तो लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है। वहां पर आप जहां भी x है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h। ओके, नाउ लुक हियर, it is equal to limit x tends to 0. Okay, this is minus h upon this is minus h। मॉड्यूलस की वजह से आपका ये क्या बनेगा, h अपॉन माइनस h। ओके, कैंसिल, ये वैसे 0.0 फॉर्म है, इफ यू पुट 0 0 तो 0.0 फॉर्म में इसको 0.0 नहीं लिखिए, आप इसको जब भी 0.0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू -1 आ रहा है। अब आप राइट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 के राइट में आपने देखना है, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके, आप जहां भी x है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर भी h आ जाएगा, मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही आएगा, नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव है, 0.0 फॉर्म आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, इट मींस वी नीड टू सिंप्लीफाई इट, दिस इज +1, so this is equal to +1, -1 is not equal to +1, so left hand limit is not equal to right hand limit, this implies limit कहाँ पर चेक किया आपने, 0 पर, फंक्शन की doesn't exist। okay, do practice of these type of questions। हाँ जी, look here students, this is one extra question, this is not from your NCERT exercise। The question is show that limit x is tending to 2, this function is modulus of x minus 2 upon x minus 2 doesn't exist। फंक्शन ये है आपका और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए मॉडुलस फंक्शन वी नो एट critical point to the left and right of the critical point it behaves in a different manner। जैसे समझो जरा, अगर ये है x मॉडुलस तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो 0 के लेफ्ट में ये -x होता है और 0 के राइट में ये +x होता है। ठीक है, अभी दोबारा से देखो, इफ इट इज x minus 1 मॉडुलस ऑफ x minus 1, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, x minus 1 इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1। तो जो 1 क्रिटिकल पॉइंट है तो इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में माइनस लगा के ये ओपन होता है और राइट में ये प्लस लगा के x minus 1, इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर मैं एक दो और एग्जांपल्स लेती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सपोज करो ये है x plus 7, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x plus 7 इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -7, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है -7। तो -7 के लेफ्ट में ये माइनस बिल्कुल एज इट इज लिखो, जो भी एज इट इज, बस बाहर माइनस लगा दो, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट के राइट में राइट इट एज इट इज, जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको एज इट इज लिखना है, लेकिन बस प्लस साइन के साथ लिखना है आपको। ये ध्यान रखना है कि कैसे, हाउ डू वी ओपन यानी मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब मैं ये आपका ये जो फंक्शन है और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है x minus 2 का, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको खोलेंगे। तो हमने देखना है ये आपका इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेती हूँ, पहले ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, ठीक है, तो अभी 2 के लेफ्ट में ये -x minus 2 अपॉन x minus 2 खुलेगा और राइट में प्लस x minus 2 अपॉन x minus 2 ओपन होगा ये, ओके। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड्स टू 2 का लेफ्ट, 2 के लेफ्ट में फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 के लेफ्ट में फंक्शन कैसे खुल रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए इसको अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, -1 है, डायरेक्ट -1 है, करने की जरूरत भी नहीं है इसको, डायरेक्ट -1 है। और यहाँ पर देखिए ये कैंसिल होके क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट पर क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू, डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पर, ये कैंसिल होके +1 डायरेक्ट है ये, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन doesn't exist, sorry, limit of the function doesn't exist at 2, okay।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए, इन दोस क्वेश्चंस वी आर फाइंडिंग द लिमिट्स. नाउ दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन इन व्हिच इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट दिस लिमिट 2x व्हेन x इज टेंडिंग टू 2. लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट इज गिवन. हमें गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस k. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कब करती है? व्हेन डज द लिमिट एग्जिस्ट? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. It means we need to find out the left hand limit and right hand limit, and we'll say because the limit exists, therefore both the limits must be same. Okay. So now first of all, let us show it on the number line. Critical point is 2. 2 के left में function क्या है? This is 2x plus 3. Sorry, this is 2x plus 3, and on the right side, this when x is greater than 2, function is x plus 3k. Okay. So left hand limit. Left hand limit x is tending to 2 का left. So this is 2 minus fx is equal to limit h tends to 0 and replace this x. बाकी सबको आप as it is लिखिए, सिर्फ इस x की जगह क्या लिखना है? 2 minus h. 2 minus h. Now put the value of the limit. h is tending to 0. h की जगह 0 रखेंगे तो 2 2s are 4 plus 3. This is 7. Okay. Now right hand limit. Limit when x is tending to 2 plus fx is equal to limit h is tending to 0. ये तो हमेशा ऐसे करना है. 2 के राइट में फंक्शन देखना है, 2 के राइट में फंक्शन देखना है, फिर नेक्स्ट लिखना होता है लिमिट h is tending to 0. अब जहाँ भी x है उसकी जगह छोड़िए, बाकी एज इट इज लिखिए और इस x की जगह क्या लिखेंगे? 2 plus h. 2 plus h. Now put the value of h, that is 0. Limit is 0. So 2 plus 3k. This is 2 plus 3k. Now अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट, और हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. दिस इंप्लाइज 7 इज इक्वल टू 2 plus 3k. दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 3k. दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 5/3. आगे आपके पास k की वैल्यू आ गई. I have taken one more question of the same type in which again it is given that the limit at x2 is given that it is exists, then find the value of the k. फंक्शन क्या है? जितनी भी x की लेस देन 2 वैल्यूज हैं, 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट. लेस देन 2 के लिए, सॉरी, दिस इज लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है? 4x minus 5. And when x is greater than 2, the value of the function is x minus k. And you have been given that the limit exists. 2 पर ये limit exist करती है. It means left hand limit और right hand limit same है 2 के around. तो हम left hand limit निकालते हैं. Limit x is tending to 2 minus fx. ये आपका जो same steps रहते हैं, लिखने का तरीका यही रहेगा. Limit h tending to 0. 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है? वहाँ x को छोड़ दीजिए सिर्फ ब्रैकेट लगा के, बाकी सब कुछ लिखिए. ये फंक्शन था, x की जगह ब्रैकेट लगाया और x की जगह लिखेंगे 2 minus h. 2 minus h. अब h की वैल्यू पुट करिए, h is tending to 0, तो क्या आया? 8 minus 5, that is 3. Now right hand limit. Right hand limit is limit x is tending to 2 plus fx is equal to limit h is tending to 0. राइट में क्या फंक्शन है? x की जगह छोड़िए माइनस k. x की जगह क्या लिखेंगे? 2 plus h. 2 plus h. अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 minus k आ गया आपके पास. आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट x is tending to 2 fx exists. और वो कब एग्जिस्ट करता है वो हमें पता है. दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट, this is 3 is equal to 2 minus k. This implies k is equal to 2 minus 3. This implies k is equal to minus 1. Okay. And the students, this is the question number 26 of exercise 13.1. इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये अगर हम नंबर लाइन पर दिखाएं, क्रिटिकल पॉइंट 1 है. 1 के लेफ्ट में फंक्शन है a plus bx. 1 के राइट में फंक्शन दिया है b minus ax एंड इक्वल टू 1 पर है 4. इक्वल टू 1 पर यहाँ पर है 4.
1 के लेफ्ट में 1 के राइट में ये फंक्शन दिया है। आप बोला है आपको इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx यानी कि दैट इज गिवन इक्वल टू f1। f1 कितना है? f1 इज 4। तो कह रहा है कि अगर ये जो लिमिट है 1 पर फंक्शन की वो f1 के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अगर बोल रहा है कि लिमिट इसके इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1। तो आप a और b की वैल्यूज निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो निकालनी है इसमें, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लिया। किसके अराउंड लेना है? 1 के अराउंड बोला है इसने, ये देखिए ये 1 बोला है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू, फिर क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। 1 के लेफ्ट में आप क्या करेंगे? x की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस h। अब आप h की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, तो a प्लस b आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 के राइट में फंक्शन। अब 1 के राइट में लेना है फंक्शन, तो आप कैसे लेंगे? 1 के राइट में फंक्शन क्या है? x की जगह से रखिए। यहाँ पर देखिए h इज टेंडिंग टू 0 लिखना है, तो b माइनस a, x की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस h। और अब आप h की जो लिमिट है वो पुट कर देंगे 0, तो आपके पास आया b माइनस a। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया, राइट हैंड लिमिट भी आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1 है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भाई आपको पता है कि अगर वो बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, भाई लिमिट इसके इक्वल है। लिमिट इसके इक्वल कब होगी? जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। इक्वल टू f1, और f1 जो है वो किसके इक्वल है? 4 पर। यहाँ देखिए f1 पर 4 के इक्वल है, दैट इज 4। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 4 के इक्वल आ गई और राइट हैंड लिमिट भी आपकी 4 के इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था? a प्लस b इक्वल टू 4, और ये क्या है? b माइनस a। राइट हैंड लिमिट क्या है? b माइनस a इक्वल टू 4। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, आप इनको सॉल्व कीजिए। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए b की 4 माइनस a। यूज इट इन, दिस इज 1, दिस इज 2। यूजिंग 1 इन 2, तो b की वैल्यू लिखी 4 माइनस a इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, माइनस 2a इज इक्वल टू 0, यानी a आ गया 0। a की वैल्यू 1 में पुट कीजिए। यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 0, b आ गया आपका 4। तो ये आपका आंसर है। a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 4 आई है आपके पास। And student, this is the question number 31 of the exercise 13.1. If the function f(x) satisfies this, क्या satisfy कर रहा है कि limit x tends to 1, f of x minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi। यानी कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो गिवन है, वो पाई के इक्वल है, पाई के इक्वल है, एंड यू आर टू इवेल्युएट लिमिट x tends to 1 fx, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अप्लाई करते हैं तो ये 0 आता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या हो जाता है आंसर? इन्फिनिटी, है ना। बट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट, अभी इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, लिमिट fx माइनस 2 अपॉन लिमिट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। ओके, दिस इंप्लाइज लिमिट fx माइनस 2 अपॉन, दिस इज x टेंड्स टू 1, दिस इज x टेंड्स टू 1। अगर मैंने ये लिमिट यहाँ अप्लाई कर दी तो ये 0 आ रहा है। 0 इज इक्वल टू पाई।
इट इज पॉसिबल, ये 0/0 फॉर्म आएगा, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म हुआ, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) -2 इज इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तभी आएगी जब न्यूमरेटर में भी 0 होगा, इसकी लिमिट भी टेंडिंग टू 0 होगी। व्हाट डज इट मीन? यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है। -2 इधर से जाएगा तो ये 2 हो गया। हाँ जी, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया है कि फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे। अब पहले इसको नंबर लाइन पर ही साथ में दिखा देते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट 0 से अगर लेस है, x इज लेस देन 0, देन फंक्शन इज mx² + n। 0 and 1 के बीच में, 0 and 1 के बीच में फंक्शन है nx + n। ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन है nx³ + n, ठीक है। ये -∞, ये इधर जा रहा है +∞, ओके। तो आपको बोला गया फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n बोथ द लिमिट्स 0 पर और 1 पर, दोनों पर लिमिट एग्जिस्ट करे, ओके। तो चलो पहले 0 की लिमिट देखते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0 चेक कर रहे हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी देख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, दैट इज लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है m लिखिए, x की जगह स्पेस छोड़ के फंक्शन है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया +n, और x की जगह क्या लिखेंगे 0 - h। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए, h इज 0, 0 × m इज 0 इक्वल टू आ गया m, ठीक है। आप राइट हैंड लिमिट कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 + f(x), फंक्शन 0 के राइट में, फंक्शन 0 के राइट में क्या है, ये है 0 के लिटिल बिट राइट। आप बोलेंगे 0 का राइट तो ये भी है, हमें जाना होता है 0 का बिल्कुल स्लाइटली, थोड़ा सा बिल्कुल राइट में जाना है, तो थोड़ा सा राइट में तो फिर यही वाला फंक्शन है, n x की जगह छोड़ दीजिए +n, और n इस x की जगह क्या लिखेंगे 0 + h, h को h की लिमिट पुट की 0, 0 × n इज 0, दैट इज n, ठीक है। इसने बोला लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, इसने बोला ना लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट अब एग्जिस्ट कब करेगी 0 पर, व्हेन n इज इक्वल टू m। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) exists when left hand limit is equal to right hand limit, so that when n is equal to m। 0 पर तब एग्जिस्ट करेगी जब n इज इक्वल टू m होगा। चलिए अब राइट हैंड, अब आप 1, ये हमने इसका तो चेक कर लिया कि ये कंडीशन दे रहा है कि n और m दोनों सेम होंगे तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब 1 पर भी देखना है, और इसने बोला कॉमन बताओ सॉल्यूशन कब वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो पहले हम 1 की भी देख लेते हैं लिमिट, फॉर x इज इक्वल टू 1, लिमिट पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 का लेफ्ट लेना। देखो 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में तो ये भी 1 के लेफ्ट में है, ये भी 1 के लेफ्ट में है, कौन सा वाला 1 के लेफ्ट में जाना है, 1 का लिटिल बिट लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट में, तो थोड़ा सा लेफ्ट में तो यही फंक्शन है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, क्या है ये वाला फंक्शन। एंड x की जगह क्या रखेंगे, अब x की जगह रखेंगे 1 - h, तो ये आएगा h की लिमिट पुट की 0, तो ये आया n + m, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 के लिटिल बिट राइट में जाना है, तो फंक्शन ये है n, फिर q, फिर m, और x की जगह क्या लिखेंगे 1 + h। अब आपने h की वैल्यू पुट की 0, तो 1 का क्यूब आ गया, 1 का क्यूब 1, 1 × n इज n, तो n + n, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट
अब जब यहाँ पर तो खैर n प्लस m दोनों में ही सेम आ गया आपका, फिर भी अगर आप देखें कि n और m अगर सेम होते हैं तब भी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) and limit x tends to 0 f(x) exists when n is equal to m होता है, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। वैसे तो इसमें हर केस में कर रही है, लेकिन अगर n is equal to m होगा तब भी तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, तो ये आपकी कंडीशन है इसके लिए। तो इसके साथ ही हमारे इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। नाउ विल स्टार्ट डेरिवेटिव इन द नेक्स्ट लेक्चर।